जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। स्वागत है आपका गैंग्स ऑफ टॉपर्स में। आज के इस सेशन में हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शेरशाह सूरी defeated Humayun and forced him to flee the country. Means first line is saying that शेरशाह सूरी first defeated Humayun. Means शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और हुमायूं को फोर्स किया that please go away from this country. And he then declared himself as a sovereign ruler and started building to the second Afghan empire that is called the Sur Empire. Means after defeating Humayun, हुमायूं को हराने के बाद he declared himself, ये अपने आप को डिक्लेयर किया as a sovereign ruler, as a independent ruler, and started building the second Afghan empire that is called the Sur Empire. Means after that he started building a second Afghan empire, and after that this is also called as the Sur Empire. Okay, मीन्स यहाँ पे बात यही हो रही है कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और हुमायूं को फोर्स किया दैट गो अवे फ्रॉम दिस कंट्री, एंड आफ्टर दैट ही डिक्लेयर हिम इंडिपेंडेंट। मीन्स आफ्टर दैट, आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं, मीन्स हुमायूं को हराने के बाद ही अपने आप को क्या क्या डिक्लेयर किया एज अ इंडिपेंडेंट रूलर और एज अ सॉवरेन रूलर, एंड स्टार्टेड बिल्डिंग द सेकंड अफगान एम्पायर दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द सूर एम्पायर। ओके, now in his short reign, means in this only a small time span. What is the time span of the Sur empire? That is only 1540 to 1545. Means in his short spans, in this only 5 years, Shersha Suri was able to establish an administrative system and that served as a basis of Mughal administration in the later year. Means now in this only a small reign, means only 5 सालों के राज में शेरशाह सूरी ने एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एस्टैब्लिश किया। ओके, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है ये फाइनली जा करके एज अ बेसिस बनता है किसका? मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। ओके, आगे नेक्स्ट ईयर में नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द शेरशाह। तो शेरशाह सूरी का अगर रीन देखें तो शेरशाह सूरी एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम 1540 to 1545। ओके, during his short reign of the 5 years, means only he ruled only 5 years, Shersha Suri established a large empire. Now he is going to establish a large empire. What is the empire? You can see the map. He is going to establish this large empire. Okay, only in a short period of span, that is only a 5 year. Okay, so and a sound administrative system, means what is saying that it is a sound administrative system, and this sound administrative system is going to be served as a basis of Mughal administrative system in the later year. Now, if we talk about the Shersha Suri के बारे में अगर जाने तो Shersha Suri proved himself as a brilliant military general and a capable ruler. Means you can say that he himself is a capable ruler, and इनको बोला जाता था ये एक ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल है, साथ में काफी इंडिपेंडेंट और सॉवरेन रूलर था। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्क्वेस्ट, नाउ Shersha Suri was a Jagir. First of all, you understand he was actually a Jagirdar of the Sasaram district in Bihar. Means he worked as a Jagirdar, and he was the Jagirdar where he was कहाँ का जागीरदार था? सासाराम का जागीरदार था। ठीक है, नाउ बाद में ये क्या करता है, ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है, ठीक है, इसको एडवांटेज लेते हुए क्या करता है शेरशाह, क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्या होती है? बाबर का डेथ हो जाता है, बाबर का डेथ हो जाता है। एंड यू नो अबाउट द हुमायूं क्या होता है कि मैनेज नहीं कर पाता बढ़िया से, एंड एस्टैब्लिश हिज कंट्रोल ओवर द बंगाल एम्पायर। मींस he later took the advantage of the political instability after the Babar's death and established his control over the Bengal and Bihar. Means जो political instability होती है कि बाबर के बाद क्या होता है, हुमायूं बना राजा, तो हुमायूं को बढ़िया सा सपोर्ट नहीं मिलता है, और वो जो सपोर्ट नहीं मिलता फ्रॉम हिज ब्रदर्स आल्सो, फ्रॉम हिज काजीज, और जो वहाँ की जो पब्लिक होते हैं और वहाँ के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो भी सपोर्ट नहीं करते हुमायूं को। तो ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होता है ये कौन एडवांटेज टू प्लेस लेता है? मींस इसका एडवांटेज लिया जाता है किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा। ठीक है, एंड फाइनली ये क्या करता है, शेरशाह को हरा देता है। ठीक है, एंड एस्टैब्लिश हिज कंट्रोल ओवर बंगाल एंड बिहार। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल शेरशाह कैप्चर्ड बंगाल। वी आर स्टडीइंग अबाउट द कॉन्क्वेस्ट, मींस शेरशाह सूरी ने किसको किसको हराया था? शेरशाह सूरी एक्चुअली कैप्चर्ड बंगाल बाय डिफीटिंग खिरिश खान। तो फर्स्ट इन्होंने पहला क्या किया, शेरशाह बंगाल के खिरिश खान को हराया। सेकंड क्या होता है, 1540 ईस्वी में क्या करता है ये, ही डिफीटेड द मुगल रूलर दैट इज हुमायूं इन द बैटल ऑफ कनौज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बैटल ऑफ कनौज में हुमायूं को हरा देता है कौन? शेरशाह सूरी, and assumed the throne of title. Means after defeating this Humayun, this Shersha Suri is going to assume the title of Delhi. Now
After this, Malwa was annexed next, where Qadir Shah shown these obedience means एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, ये कादिर शाह क्या करता है, कादिर शाह ओबे नहीं करता किसको, शेरशाह सूरी को। तो मींस आफ्टर शोइंग दिस डिसओबीडियंस, आफ्टर हैविंग डिसओबीडियंस टू शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी क्या करता है, ये कादिर शाह को हरा देता है एंड एनेक्स मालवा, मींस हरा करके मालवा को एनेक्स कर लेता है। शेरशाह सूरी आल्सो ऑक्युपाइड ग्वालियर, बाद में क्या करता है, शेरशाह सूरी इज आल्सो गोइंग टू ऑक्युपाई ग्वालियर, ग्वालियर को भी वो जीत लेता है फ्रॉम द अब्दुल कासिम इन 1542 में। क्या करता है, अब्दुल कासिम का जो होता है एरिया दैट इज ग्वालियर, वो एरिया को भी कैप्चर कर लेता है। नाउ the Rajputs were the potent force, means potent means had the mighty force and did oppose Shershah, means you can say that there was a power struggle between Rajput and the Shershah Suri, and gradually almost the whole Rajputana came under his control, means after having all this power, although this whole Rajputana that is came under his control, means came under the Shershah Suri. Shershah also succeeded in occupying the impregnable fort of Kilinjar, very important. You have to understand this Kilinjar, okay? Because in exam it is asked generally ki when this Shershah Suri is going to die. Means in this war, means in order to occupy this fort, that is a fort of Kilinjar, he was actually severely wounded on the account of explosion. वहां पे क्या होता है, एक explosion होता है और उसी की वजह से क्या होता है, शेरशाह मर जाता है आफ्टर मीन्स इन दिस वार, ओके। मीन्स ये जो ऐसा समझ लो, यहाँ पे क्या होती है, वार होती है, शेरशाह सूरी क्या करता है, ऑक्युपाई करता है फोर्ट किसका, किलिंजार को, और ये जो ऑक्युपाई करने में क्या होता है, ये सीवियरली वुंडेड हो जाता है, मीन्स काफी ज्यादा ये चोट लग जाती है। कैसे चोट लगती है, बोला जाता है कि दैट इज एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन में उसको चोट लगती है, साथ में बाद में वो क्या होता है, मर जाता है। बाद में इनका जो डेड बॉडी होता है, इनका जो डेड बॉडी है, इट इज बरीड इन सासाराम, ओके, इन बिहार। Now, next question we want Shershah's administration. We are talking about the Shershah's administration. Shershah was a brilliant organizer. तो बोला जाता है कि शेरशाह, देखो 5 साल के राज में शेरशाह ने क्या किया, ये पूरा एरिया को कैप्चर कर लिया। तो बोल सकते हैं ना, he was a capable ruler. So he is saying that Shershah was a brilliant organizer. शेरशाह क्या था, एक brilliant organizer था, not just in military but also in social civil affairs also. Means पहला पॉइंट याद रखो कि शेरशाह एक brilliant organizer था, brilliant manager था, not only for the military aspect also but also in the civil aspect also. Now his administrative system was much admired and appreciated and served as the foundation of Akbar's administration later. Now देखो इनका जो administrative system होता है वो काफी ज्यादा admired किया जाता है, appreciate किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, जो अगले जो आने वाले रूलर्स हो गए, स्पेशली द अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन का। और ये बताया जाता है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है वो सर्व करता है एज अ फाउंडेशन ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। Now, if we talk about the later administration, Shershah continued with many features of the central administrative machinery which has evolved under the Delhi Sultanate. Means Shershah क्या करता है, बहुत सारा features लाता है, बहुत ज़्यादा means add कर value addition होता है किसमें, central administrative machinery में। Okay, now first what are the development? The working of the administration was kept under Shershah's direct control and supervision. Means यहाँ very important, यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताया जा रहा है, जितना भी वर्क होगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो भी अंडर द क्या होगा, अंडर द डायरेक्शन किसके होगा, अंडर द डायरेक्शन द सुपरविजन किसके होगा, डेट इज शेरशाह सूरी के अंडर होगा। सेकेंड हो गया, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिपार्टमेंट। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, डिपार्टमेंट होता है, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली बहुत सारे डिपार्टमेंट में डिवाइड कर लिया जाता है, ठीक है। Now, a strong and efficient spy system was organized. यहाँ पे एक अच्छी बात होती है कि ये शेरशाह सूरी क्या करता है, एक काफी मजबूत खुफिया एजेंसी को डेवलप करता है, सो दैट यहाँ पे क्या होता है, कुछ भी अगर मान लो कोई अगर ऑफिसर्स अगर करप्शन करता है तो वो उसको ऑटोमेटिकली उसको स्पाई करेगा और ऑटोमेटिकली उसको डिस्चार्ज कर देगा, लाइक दैट। शेरशाह अंडरटुक सेवरल मेजर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट्स। मींस साथ में ये क्या करता है, बहुत सारे मेजर्स लाता है, बहुत सारे पॉलिसीज लाता है फॉर द डेवलपमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। ही वाज एन एक्टिव रूलर, ये काफी ज्यादा एक्टिव रूलर होता है, एंड अंडरटुक अ नंबर ऑफ टूर्स टू कैरी आउट रेगुलर इंस्पेक्शन टू एंश्योर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। में देखो ये बोला जाता है कि ही वाज एक्टिव रूलर। एक्टिव रूलर का मतलब क्या हो रहा है कि ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, ये बहुत सारा टूर करता है, कहाँ पे, इन हिज एम्पायर। व्हाई, इन ऑर्डर टू कैरी आउट रेगुलर इंस्पेक्शंस। अगर इंस्पेक्शंस होगा तो वहां पे क्या होगा, स्मूथ फंक्शनिंग होगा किसका, हर डिपार्टमेंट का, ओके।
Now, if we talk about the provincial administration, village was the smallest unit of administration. तो हम लोग अगर बात करें provincial means क्या होता है, that is about the top. Provincial means state, okay. So state level administration, village was the smallest unit of administration. तो village क्या होता है, कि smallest unit होता है किसका administration का. अब group of village is going to form परगना, means यहाँ पे पहले क्या होगा, village होगा, ठीक है. village के बाद हमारा क्या आता है, that is परगना आएगा. village के बाद क्या आएगा, परगना आएगा. परगना के बाद हमारा क्या होगा, सिख आएगा, ठीक है. और सिख के बाद हमारा आता है सरकार, ठीक है. एंड सरकार इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोविंस. तो याद रखो कि विलेज होगा, विलेज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. बहुत सारा विलेज क्या बनाएगा, परगना बनाएगा. और बहुत सारा परगना मिला करके क्या बनेगा, सिख बनेगा. एंड ऑटोमेटिकली दिस सिख इज इक्विवेलेंट टू सरकार और प्रोविंस. ओके. नाउ शेरशाह क्या होता है, शेरशाह इज गोइंग टू डिवाइड हिज एम्पायर इनटू 47 सरकार. मींस ये जो सरकार होता है, ये सरकार स्टेट या प्रोविंस बात करें तो शेरशाह के कितने होते हैं, डेट इज डिवाइडेड हिज एम्पायर. मींस ये अपने एम्पायर को, अपने एरिया को डिवाइड करता है कितना, 47 सरकार में. However, in few areas, means in few areas such as Punjab, Bengal, Malwa, several Sikhs were placed under an officer. Means देखो ये जो एरिया, बहुत सारे एरिया जो होता है वो बेसिकली गवर्न किया जाता है किसके अंडर, वहां पे एक ऑफिसर्स को भेज दिया जाता है, ठीक है. नाउ सरकार्स were administered by Afghan chiefs and several officials such as सिकदर ए सिकदरम. तो ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड आता है कि ये जो सरकार है, सरकार मींस प्रोविंस है, ये किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर किया जा रहा है, किसके द्वारा रूल किया जा रहा है, अफगान चीफ के द्वारा, ठीक है. साथ में बहुत सारा ऑफिसर्स दिया जाता है और उसको बोला जाता है, ये जो अफगान चीफ या सेवरल ऑफिसर्स उनको क्या बोलते थे, सिकदर ए सिकदरम. क्या बोलते थे, सिकदर ए सिकदरम. और एक और वर्ड है दैट इज मुंसिफ ए मुनासिफ. क्या नाम है, मुंसिफ ए मुनासिफन. ओके. ना सिकदार लुक्ड आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर. तो यहाँ पे एक बात आती है कि सिकदार का काम क्या होता है, सिकदार का काम है भैया आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, ठीक है. तो बच्चों सिकदार का काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है. एंड मुंसिफ का काम क्या होगा, दैट इज ही इज गोइंग टू कलेक्ट, ही इज गोइंग टू द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. तो बच्चों ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज सिकदार का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और मुंसिफ का काम होता है दैट इज उनको रेवेन्यू कलेक्शन का चार्ज दिया जाता है, ठीक है. नाउ to control corruption and the concentration of power in the hands of officials, शेरशाह frequently transferred all the officers. देखो अब करप्शन का चांसेस को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है, अब पावर को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है, किसी के हाथ में पूरा कॉन्सेंट्रेट पावर नहीं चला जाए, तो ये क्या करते थे शेरशाह, ये फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर कर देते थे, ठीक है बच्चों. यहाँ पे फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर करने का मतलब हो रहा है कि ऑफिसर्स को यहाँ मान लो यहाँ पे एक साल रहे, फिर नेक्स्ट साल में क्या करेंगे, उस ऑफिसर को दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे. तो इससे क्या होगा, उनका जो पावर होगा, उनका जो करप्शन करने के चांसेस वो डिक्रीज हो जाता था. तो ये काफी अच्छा पॉलिसी था. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ऑफिसर्स ऑफ द विलेज, मींस विलेज में कौन कौन से ऑफिसर्स हैं, तो विलेज हेडमैन वाज नोन एज मुकद्दम. तो विलेज जो हेडमैन होते थे उनको बोलते थे मुकद्दम. मींस आज के जमाने में बोलते हैं हम लोग विलेज हेड को मुखिया, उस जमाने में क्या बोलते थे, मुकद्दम. एंड ही वाज द सोल लिंक, ही वाज द सोल लिंक मींस ही वाज द ओनली लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द विलेज. मींस ये ऑटोमेटिकली एक ही लिंक था, एक ही सोल रिप्रेजेंटेटिव था बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द विलेज. ओके. नाउ आफ्टर दैट ही वाज द रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. मीन देखो ये मुकद्दम का काम होता था भैया, इसको जितना भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता था, ठीक है, और ही इज एक्चुअली रिगार्डेड एज अ विलेज हेड. ओके. पटवारी का काम होता था, पटवारी का काम होता था ही वाज अ विलेज रिकॉर्ड कीपर. तो ये इनको बोला जाता था ही वाज अ विलेज रिकॉर्ड कीपर. He was not a direct employee of the state. He was not a direct employee of the state, but worked for the village community. देखो ये जो पटवारी होता था, जो विलेज रिकॉर्ड करता था, he is not a direct employee. Means ऐसा नहीं कि स्टेट इसको एम्प्लॉय कर रहा है या किंग इसको एम्प्लॉय कर रहा है. He is actually worked for the village community. Okay. Now इफ यू टॉक अबाउट द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, देखो बच्चों ये मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉपिक है काफी इजी टॉपिक है, ये आपको एग्जाम में काफी बार आता है, ठीक है. तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पे शेरशाह सूरी ने क्या किया था. तो शेरशाह सूरी हैड सेट अप अ स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी. तो पहले क्या करता है, ये कि स्टैंडिंग आर्मी बनाता है, स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी. देखो स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी कैसे बनता है वो देखेंगे. इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर एंड कंसोलिडेट हिज वास्ट एम्पायर. मींस पहला काम क्या होता है कि इसको एडमिनिस्टर करना, इसको रूल करना ऑल ओवर एम्पायर.
और इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट, ऐसा नहीं कि पूरा एम्पायर को आज इस एम्पायर को आज इस एरिया को एनेक्स किए, आज इस एरिया को ऑक्युपाई किए, तो ऐसा नहीं कि बाद में जाकर के उस एरिया को कोई और छीन ले। मीन्स उस एरिया को मेंटेन, स्टैटिक क्यों मेंटेन रखना है, मीन्स कंसोलिडेट करके रखना है, ऐसा नहीं कि बाद में वो छीना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता था शेरशाह, एक स्टैंडिंग आर्मी बना के रखता था, ठीक है। नाउ शेरशाह सूरी के बारे में एक और बताया जाता है कि ही इज एक्चुअली फॉलोड अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक पॉलिसी अप्लाई किया था, दैट इज फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स और सोल्जर्स। तो ही फॉलोड अलाउद्दीन खिलजी's पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द सोल्जर्स, ओके। ही आल्सो रिवाइव्ड अलाउद्दीन खिलजी ऑफ दाग एंड चेहरा। तो बाद में क्या करता है, ये जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, यहाँ पे एक रिवाइवल होता है, ठीक है। यहाँ पे दाग एंड चेहरा का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो दाग का मतलब होता है, दाग मतलब होता है कि वहां पे मान लो हॉर्सेस है, तो हॉर्सेस के ऊपर एक दाग दिया जाता था। दाग इसलिए दिया जाता था कि अगर दाग है तो ये क्या एक सुपीरियर क्वालिटी का हॉर्स है, सुपीरियर क्वालिटी का हॉर्स है। अगर दाग नहीं है तो इसका मतलब ये इंफीरियर क्वालिटी का होता है। तो यहाँ पे होता था क्या कि बहुत बार क्या होता था कि यहाँ पे हॉर्स से घोड़ा को, एक सुपीरियर क्वालिटी घोड़ा को वहां पे क्या करता था किंग, ब्रांड कर देता था, ठीक है। मींस प्रैक्टिस ऑफ ब्रांडिंग होती थी। वहां पे एक इंपीरियल साइन होता था कि अच्छा मुहर मारने वाला, ऐसा समझ लो दाग होता था किस घोड़ा के ऊपर, ठीक है। अब मान लो घोड़ा के ऊपर दाग नहीं है तो पक्का ये इंफीरियर क्वालिटी का घोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा चांस ना हो कि सुपीरियर क्वालिटी को कोई रिप्लेस करते विद इंफीरियर क्वालिटी घोड़ा। तो वहां पे दाग अगर है तो हाँ ये घोड़ा अच्छा वाला है, अगर दाग नहीं है तो इंफीरियर क्वालिटी वाला घोड़ा है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे दाग का कॉन्सेप्ट यूज होता था, ठीक है। तो मीन्स यहाँ बातें हो रही द प्रैक्टिस ऑफ ब्रांडिंग द हॉर्स विद इंपीरियल साइन। इंपीरियल साइन मतलब होता है कि किंग का एक साइन होता था, ठीक है। जैसे आज के समय में हम लोग नेशनल जो बाघ का चिन्ह होता है वो क्या इंपीरियल साइन है इंडिया का। उस समय अपना उसका कोई साइन होगा तो उसको दाग बोला जाता था। एंड वाज पर्पस क्या था, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिप्लेसमेंट ऑफ द सुपीरियर अरेबियन हॉर्सेस विद द इंफीरियर वन। और चेहरा का कॉन्सेप्ट होता है, चेहरा का मतलब सिंपल सा समझ लो, चेहरा मतलब आज के जमाने का आइडेंटिटी कार्ड। जैसे बच्चे आप लोग के पास क्या एक आइडेंटिटी कार्ड होगा, किस क्लास में पढ़ते हैं, उसमें आपका एक फोटो होगा, नाम होगा, सेक्शंस होगा, लाइक दैट। उस समय क्या होता था, हर सोल्जर्स का एक डिस्ट्रिक्टिव रोल होता था, ठीक है। उसमें क्या होता था उसके बारे में बताया था। पर्पस क्या होता था, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिस में, ऐसा नहीं कि इस जगह मींस इस बंदे के जगह कोई और बंदा आ गया। तो ये जो प्रॉक्सी अवॉइड करने के लिए चेहरा का कॉन्सेप्ट लाया गया था। बच्चे यहां तक आपको समझ में आ रही है। नाउ ही फॉलोड द प्रैक्टिस ऑफ पेइंग द सोल्जर्स इन द केसेस। नाउ अगला पॉलिसी इन्होंने क्या किया था कि ये जो सोल्जर्स को पे करते थे इन द फॉर्म ऑफ केस, ओके। शेरशाह आर्मी वाज वेल ट्रेन्ड। तो शेरशाह की जो आर्मी थे वो काफी ज्यादा ट्रेन थे, काफी ज्यादा डिसिप्लिन भी थे, काफी ज्यादा डिसिप्लिन थे। इसलिए इन्होंने 5 साल के अंदर पूरा एरिया को कंसोलिडेट करके रखा। एंड इक्विप विथ आर्टिलरी, ओके। He had divided the army into units. Now after this शेरशाह सूरी ने क्या किया, आर्मी को डिवाइड किया एक यूनिट में, ठीक है। और ईच यूनिट इज अंडर कमांडर, मीन्स यूनिट मतलब हो गया मान लो कि 20 का यूनिट हो गया और इस 20 यूनिट को एक कमांडर दे दिया जाता था, ठीक है। तो मीन्स आर्मी को ये डिवाइड करके रखते थे इन यूनिट और ईच यूनिट को एक कमांडर दिया जाता था। गैरिसन्स वर एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। देखो गैरिसन्स बेसिकली एस्टैब्लिश किया गया था। पर्पस क्या था, इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट द एम्पायर। Now, besides the regular army stations at the imperial headquarters, he set up a cantonment in different strategic part of the empire under the फौजदार। मीन्स ये जो रेगुलर आर्मी को स्टेशन करना है कहाँ पे, हेडक्वार्टर में। तो यहाँ पे एक कंटोनमेंट एरिया को डेवलप किया गया था, ठीक है। और ये किसके अंडर होता है, फौजदार इसको हैंडल करता है, okay. Now if we talk about the judicial administration, शेरशाह plays a lot of emphasis on the administration of justice। मींस शेरशाह काफी ज्यादा जोर देता था। जोर किस पे देता था, ऑन द जस्टिस के ऊपर देता था। तो जितना भी सिविल केसेस होते थे, किसका, मुस्लिम का जितना भी सिविल केसेस आता था वो किसके द्वारा हैंडल किया जाता था, काजी के द्वारा हैंडल किया जाता था। और क्रिमिनल केसेस जो होते थे वो किसके द्वारा हैंडल किया जाता था, सिकदर के द्वारा हैंडल किया जाता था, ओके। नाउ The responsibility of detecting crimes rested upon the मुकद्दम। नाउ ये जो एक और इंपॉर्टेंट बात हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग क्राइम्स में, ये जो डिटेक्टिंग क्राइम्स किसके ऊपर थोपा जाता था, ये किसका काम होता था, दिस इज मुकद्दम का। मुकद्दम कौन है बच्चों, दैट इज ही इज द विलेज हेड। अब विलेज हेड का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता था कि ही हैज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज एरिया।
तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है मुकद्दम को कि कोई अगर क्राइम करता है तो उसको स्पॉट आउट करना है, ठीक है। एंड इफ द मुकद्दम ऑफ द विलेज वेयर द क्राइम वाज कमिटेड फेल टू कैप्चर द कल्प्रिट ही वाज लायबल टू सीवियर पनिशमेंट। तो अब मान लेते हैं कि ये जो मुकद्दम है ये क्या करता है, ये क्राइम अगर इसके एरिया में क्राइम कमिट किया और ये फेल कर गया इन ऑर्डर टू मींस कल्प्रिट को पकड़ने में, ठीक है। तो ये क्या, यही वाज लायबल टू सीवियर पनिशमेंट मींस इसको पनिशमेंट दिया जाता मींस मुकद्दम का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। तो एनी हाउ ये क्या करता था, कल्प्रिट को पकड़ के सौंपता था, ठीक है ना। पनिशमेंट ऑफ एनी क्राइम्स वाज सीवियर ना, यहाँ पे एक बात होती थी कि कोई भी अगर क्राइम करता था ना तो उसको काफी ज्यादा सीवियर पनिशमेंट दिया जाता था। पर्पस क्या था, इन ऑर्डर टू डिटर पीपल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स। पर्पस ये है कि लोग क्राइम नहीं करें, ठीक है। Now, if we talk about the land revenue system, the most striking contribution the Sirsa was towards the land revenue system and the revised. पहला क्या सबसे इंपॉर्टेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर है किसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया, सिरसा के द्वारा। ही रिवाइड द असेसमेंट ऑफ द लैंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द जोन एरिया। तो ये पहला क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि ये मेजर करते हैं लैंड को, ठीक है, और वो भी एग्रीकल्चर लैंड को। पहला हो गया। And on the basis of the fertility, the land was divided into different parts. That is good, middling and the bad type. Means फर्स्ट ये क्या करेंगे, वो मेजर करेंगे, एक्चुअल मेजरमेंट होगा एरिया का। उसके बाद जो ऑन द बेसिस ऑफ द फर्टिलिटी ही इज गोइंग टू डिवाइड मींस ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे लैंड को इनटू 3 पार्ट, गुड, मिडलिंग मींस मिडिल वन एंड द बैड टाइप। सिरसा फिक्स्ड 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस एज द शेयर ऑफ द स्टेट। मींस सिरसा क्या करेंगे, 1/3 जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या करें एज अ टैक्स ले लेंगे, ठीक है। एंड द पीसेंट हैज द लायबल लिबर्टी टू पे आइदर इन केस और इन टर्म्स ऑफ ग्रेड्स। अब पीसेंट के पास एक फ्रीडम होगा, लिबर्टी होगा दैट दे आर गोइंग टू पे इन कैश और दे आर गोइंग टू पे इन द ग्रेन। Okay, now if we talk about what आफ्टर द असेसमेंट, जब असेसमेंट पूरा हो जाता है लैंड का तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट दिया जाता है किसके द्वारा, किंग के द्वारा। उसका नाम होता था पट्टा। क्या होता है, नाम है पट्टा। ओके, तो यहाँ पे पट्टा इश्यू किया जाएगा किसके द्वारा, हमारे जो इंपीरियल है मींस किंग के द्वारा। एंड इश्यूड विच द अमाउंट ऑफ द रेट ऑफ रेवेन्यू डिमांडेड वाज मेंशन। मींस इस पट्टा में क्या होता था कि आपको अगर इस लैंड को एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आपको कितना रेट ऑफ रेवेन्यू देने पड़ेगा, ये बेसिकली डिमांड किया था किसके द्वारा, किंग के द्वारा। ये किससे मेंशन हुआ था, पट्टा में मेंशन किया था। आफ्टर दिस द पीसेंट वेर इन रिटर्न सपोज टू गिव कबूलियतनामा। ये कबूलियत मींस देखो पट्टा को रिसीव करने वास्ते पट्टा के ऊपर मेंशन रहेगा कि ऐसा समझ लो गवर्नमेंट क्या कर रही है, बिल थमा रही है, ठीक है, कि भाई आपको क्या करना, एग्रीकल्चर कर रहे हैं आप, इस एरिया को कल्टीवेट कर रहे हैं आप, इस एरिया में खेती कर रहे हैं, कि आपको क्या करना पड़ेगा, 1/3 के लमसम में आपको एक रेवेन्यू जो भी जनरेट होगा वो आपको देना पड़ेगा टू द किंग। और उसके बाद पीसेंट का काम होता था कि ठीक है हम कबूल करते हैं कि आप जो हमको बोल रहे हैं उसको हम ओबे करेंगे। ओके, सिस्टम ऑफ द ग्रांटिंग जागीर, यहाँ पे जागीर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो उसको डिस्करेज कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। Sirsa also consider welfare the peasant an essential element in the interest of the state। means सिरसा काफी ज्यादा फोकस होते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मान लो तो कहीं कहीं फ्लड हो गया, कभी ड्रफ आ गया, सूखा आ गया, ही एक्सटेंडेड द सपोर्ट टू देम एंड रिलीव देम फ्रॉम द बर्डन ऑफ द रेवेन्यू। मींस बाद में मान लो कोई फ्लड आ गया तो ये क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे और साथ में कोई भी जो बर्डन होता है टैक्स का उसको हटा देंगे, ठीक है। He also reduced taxes and provide loans to the peasant in the times of crops failure other natural disaster। Means बाद में ये क्या करेंगे, ये टैक्स को भी रिड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। कब, जब मान लो कोई क्रॉप का फेलियर हो जाए या नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो उस समय क्या करेंगे, जितना भी लोन वगैरह होगा वो प्रोवाइड भी करेंगे, साथ में टैक्स को भी रिड्यूस कर देंगे। Means he is going to do very important thing for the welfare of the peasant। Now, land revenue system of the Sirsa became the basis of the very successful revenue system of the, और ये जो revenue system of the land revenue system is actually going to follow by Akbar also। Now, if we talk about the transport system, if you are going to talk about the transport system, Sirsa also connected different part of his empire with the network of the road। So, means actually we have already seen about the Sirsa's empire. You can see that he has large area. So, what is going to happen? Since he has large area, so he is going to construct so many roads. So he is going to construct so many roads. So it is saying that
द रोड्स फैसिलिटेटेड, रोड होने की वजह से क्या होगा, क्विक मूवमेंट होगा, मीन्स आसानी से मूवमेंट होगा, किसका ट्रूप मीन्स यहाँ पे आर्मी का, विद इन द एम्पायर, मीन्स आर्मी आराम से, आर्मी जो होंगे सोल्जर्स होंगे वो आराम से ट्रेवल कर पाएंगे अगर रोड अच्छा रहा तो, ठीक है। सो शेरशाह इज कनेक्टेड, मीन्स शेरशाह क्या करते हैं, बहुत सारे रोड बनाते हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। पर्पस क्या होता है, डेट इज इन ऑर्डर टू डेवलप अ नेटवर्क ऑफ रोड, एक नेटवर्क ऑफ रोड डेवलप होता है तो उससे ट्रेड अच्छा होगा, साथ साथ में मूवमेंट जो होगा ट्रूप का वो अच्छा होगा। Okay. Now, on his greatest contribution towards the construction of the roadways was the Grand Trunk Road. तो बच्चे ये आपको पता ही होगा, जीटी रोड जिसको बोलते हैं, जीटी रोड बोलते हैं ना, वो ग्रैंड ट्रंक रोड है। कि कौन बनाया है तो आपको याद रखना होगा, शेरशाह सूरी ने बनाया था, ठीक है। कब बनाया था तो लमसम में याद रखना, 1545 के लमसम में, ये तो मर गया तो उससे पहले ही बनाया होगा। ओके। The Grand Trunk Road, that is also known as GT Road, is one of the oldest and the longest major road of the South Asia. तो याद रखना बच्चों, this GT Road is the oldest, सबसे पुराना है, and the सबसे longest, सबसे बड़ा है, लंबा है, ओके, of South Asia. अगर बात करें this 4th century, बहुत सालों से this road is going to connect the eastern and the western part of the Indian subcontinent. Okay, so this road, GT Road, is going to connect ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट। ओके, अब बोला जाता है इसका जो डिस्टेंस है लमसम कितना है, दैट इज 2500 किलोमीटर। ओके, नाउ इट ओरिजिनेट्स इन सोनार गांव। अब देखो बच्चे, ये सोनार गांव कहाँ पे, ये आपका आज का बांग्लादेश में, ये आज का बांग्लादेश में है, एंड पास थ्रू सेवरल प्लेसेस इन इंडिया बिफोर रीचिंग पेशावर इन पाकिस्तान। अब क्या करेगी, ये यहाँ से स्टार्ट होगी जो कि बांग्लादेश में, और इंडिया से पास होते होते जाएगी पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। Now, if we talk about the trade and commerce, okay, Sirsa introduced many trade currencies reforms. Sirsa is going to introduce many trade currencies. बच्चे अब देखो बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है, हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शेरशाह क्या करेंगे, बहुत सारा ट्रेड एंड करेंसी रिफॉर्म लाएंगे। ही इश्यूड अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड द कॉपर कॉइन। अब बाद में क्या करेंगे, शेरशाह इज गोइंग टू इश्यू अ लार्ज नंबर ऑफ द गोल्ड, सिल्वर एंड द कॉपर कॉइन। गोल्ड जो कॉइन होते थे उसको बोला जाता था मोहर, एंड सिल्वर जो कॉइन होता था उसको रुपया बोलते थे, और कॉपर जो होता था, कॉपर का कॉइन को बोलते थे दाम। तो 3 कॉइन होते थे, शेरशाह से 3 कॉइन को इंट्रोड्यूस किया। पहला याद रखना, गोल्ड कॉइन को क्या बोलते थे, मोहर, क्या बोलते थे, मोहर, एंड सिल्वर कॉइन को बोलते थे रुपया, एंड कॉपर कॉइन को क्या बोलते थे, दाम। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। ही सिल्वर कॉइन, दैट इज रुपया, that is remained the standard coin for the centuries till the British। ये जो वर्ड रुपया है ये अभी ब्रिटिश एम्पायर तक फॉलो हुआ और इवन टुडे आज भी हम लोग क्या करते हैं, रुपया यूज करते हैं ना, ये रुपये बोलते हैं फॉर द इंडियन करेंसी। एंड द गोल्ड कॉइन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मोहर, एंड द कॉपर कॉइन दैट इज कॉल्ड एज दाम। तो ये बच्चों, ये 3 जो कॉइन है दैट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस बाय शेरशाह। इसका जो नाम है ये आपको याद रखना है, ठीक है। He also gave much importance to the public work like building sarai, that is rest house। अब बाद में क्या करता है ये, जो इन ऑर्डर टू डेवलप ट्रेड एंड कॉमर्स, देखो ट्रेड एंड कॉमर्स को अगर डेवलप करना है तो ये क्या करते थे, सराय रेस्ट हाउस बिल्ड करते थे अलोंग द रोड्स, ठीक है। और ये बाद में ये जो रेस्ट हाउस है, दिस रेस्ट हाउस इज गोइंग टू हेल्प इन कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड आल्सो सर्व्ड एज अ डार्क चौकीज। बाद में ये क्या करने वाले, डार्क चौकी जैसे बिहेव करेंगे। द रॉयल पोस्टमैन यूज टू इट इन दीज सराय, मीन्स रॉयल मैन जो होते थे, वो पोस्टमैन होते थे, वो क्या करते थे, पोस्ट का काम करते थे, चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। तो ये क्या करते थे, इस सराय में ठहरते थे। ग्रेजुअली अ स्मॉल मार्केट इन द टाउन्स ग्रू अराउंड द सराय। तो ये ऐसा बोला जाता है, ये जो अराउंड दिस सराय और डाक चौकी और यू कैन से रेस्ट हाउस, बहुत सारे छोटे छोटे मार्केट लगते थे। टाउनशिप हो गया, मीन्स वहां पे आसपास में लोग रहते थे, ठीक है। शेरशाह लेविड 2 ड्यूटीज ऑन गुड्स एंटरिंग द कंट्री। शेरशाह क्या करते थे, ड्यूटीज इंपोर्ट करते थे, ठीक है, ऑन द गुड्स। मान लो दूसरे कंट्री से अगर यहाँ पे आ रहा है तो उसमें ड्यूटीज लगता था। द फर्स्ट टैक्स हैज टू पेड व्हेन द गुड्स वेर ब्रॉट इनटू द कंट्री एंड द सेकंड व्हेन द गुड्स वेर सोल्ड। देखो 2 टैक्स यहाँ पे इंपोज होता था। मान लो पहला कंट्री में एंटर हुआ तो उस समय टैक्स लगेगा, और जब वो सामान बिक गया तो उस पर भी टैक्स लगेगा, ठीक है।
शेरशाह particularly asked his officer to treat all the merchants in the trade well. शेरशाह क्या करते थे, हमेशा अपने ऑफिसर्स को बोलते थे कि जो मर्चेंट आते हैं ट्रेड कर लिए उसको अच्छे से ट्रीट करें. ओके. He made the zamindars and the village headmen responsible for the safety and security of the trade in different territory. अब ये क्या करते थे, जो जमींदार हो गए और विलेज हेडमैन हो गए, डेट इज मुकद्दम, इनको काम होता था कि इनको सेफ्टी प्रोवाइड करें एंड सिक्योरिटी दे फॉर द ट्रेडर्स इन देयर टेरिटरीज. ओके. Now about the literature and the architecture. Shershah patronized several poets, scholars, and the learned men. Shershah is going to give support. Patronize means going to give support to the several poets, scholars, and the learned men. Okay. He also built the Rohtas fort. तो ये याद रखना, रोहतासगढ़, जो रोहतासगढ़ fort है, it is going to build by Shershah only. And a few building, that is Purana Killa, is also built by Shershah only. He built his own mausoleum. Mausoleum means that is जो कब्र गांव होता है. He is built his own, that is at Sasaram. तो इनके जो आप जब मरने के बाद इनका जो बॉडी होता है कहाँ पे दफनाया जाता है, that is in Sasaram only. The tomb is built in the middle of the lake. अब यहाँ ये जो tomb है ये कहाँ पे बनाया गया, that is in the middle of the lake and that is on the high platform. And the tomb has a combined feature of the Hindu and the Islamic architecture. तो इनका जो tomb है it is actually a combination of Hindu and the Islamic architecture. Now शेरशाह एज अ असेसमेंट, हम लोग शेरशाह के बारे में देख रहे हैं. तो शेरशाह के बारे में देख, शेरशाह सूरी हैड द मॉडेस्ट बिगिनियर. ही रोज टू द रैंक ऑफ एन एम्परर विद द हेल्प ऑफ हिज मिलिट्री स्किल्स एंड द पॉलिटिकल मिशन. देखो शेरशाह को ऑलरेडी हम लोग देखे विद इन ओनली 5 साल के अंदर में ये एक इनका जो कैपेबल रूलर होने का मीन्स इनका जो मिलिट्री हो गया, इनका जो मैनेजमेंट होता था काफी अच्छा होता था. ठीक है. तो ये वही बताया था कि फ्रॉम जागीर टू किंग इसको बनने में कैसा बन गया, क्या कि इनके पास एक मिलिट्री स्किल्स था, पॉलिटिकल विजडम था. During his 5-year reign, his empire extended from Bengal to the Indus, including the Kashmir also. तो ये 5 सालों के अंदर he is going to capture from Bengal to Kashmir. Okay. He gradually consolidated his power. Means बाद में ये क्या पूरे पावर को अपने आप कंट्रोल करते हैं. And he established an effective central government. Means he is going to establish an effective central government. एंड अ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और हर प्रोविंस में अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा. मच ऑफ विच वाज एडॉप्टेड बाय द मुगल्स. जितना भी ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है बाद में मुगल्स के द्वारा भी अडॉप्ट किया जाता है. ओके. बीइंग अ ग्रेट मिलिट्री जनरल, जैसा कि आपको मालूम है शेरशाह सूरी एक ग्रेट बहुत महान मिलिट्री जनरल है. ही लेड स्ट्रेस ऑन हैविंग अ स्ट्रांग एंड डिसिप्लिन आर्मी. तो बाद में ये क्या करते हैं, ये एक स्टैंडिंग आर्मी का फाउंडेशन करते हैं. शेरशाह वाज अ स्ट्रिक्ट एंड इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जस्टिस. शेरशाह के बारे में ऑलरेडी पता है कि मान लेते हैं कि ये काफी ज्यादा सीवियर पनिशमेंट देते थे किसको, जो भी अगर मान लो कोई क्राइम करता है. ठीक है. पर्पस क्या होता है, इन ऑर्डर टू डेटर मींस ताकि लोग क्राइम करने से बचे. सो ही सेइंग दैट ही वाज अ स्ट्रिक्ट एंड इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जस्टिस. मीन काफी ज्यादा जस्टिस को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे. ठीक है. He worked for the welfare of the people. ये काफी ज्यादा पब्लिक के लिए काफी ज्यादा काम किए. He had not only set up a good communication network through roads and the postal services, but also ensured the safety and the comfort of the travelers. तो देखो ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने सिर्फ roads and the postal system बनाया. ठीक है. He also ensured the safety and the comfort of the travelers. मीन जो भी यहाँ पे ट्रेडर्स आते थे उनको सेफ्टी, बकायदा सेफ्टी दिया जाता था. ठीक है. शेरशाह was a kind. शेरशाह के बारे में बोला था he was very kind. Okay. During drought and the calamities, the farmers were granted advances. Means मान लेते हैं कि नेचुरल डिजास्टर आ गया कैलामिटीज की वजह से, तो फार्मर्स को बेसिकली यहाँ पे पैसा दिया जाता था. ओके. The charges made in the changes made in the currency system, that is including the rupiah, shows his administrative wisdom. Now देखो यहाँ पे जो करेंसी सिस्टम में जो चेंजेस लाया था, जैसे यहाँ पे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया. तो गोल्ड को हम लोग क्या बोलते थे, मोहर हो गया. कॉपर को बोलते दाम हो गया. सिल्वर को रुपया हो गया. ये भी काफी ज्यादा एक इम्पैक्टफुल रेवोल्यूशन लाता है इनके एम्पायर में. शेरशाह also followed a policy of religious tolerance. मींस शेरशाह को हर रिलीजियस को टॉलरेट मींस थे, हर रिलीजियस को मानते थे. एंड ऑफन अपॉइंटेड हिंदू टू द हाईएस्ट पोस्ट. इनफैक्ट देखो बीइंग शेरशाह a Muslim ruler, he is going to appoint Hindu to the high post. So यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये इसीलिए बोला जाता है he adopted the policy of religious tolerance. In fact, his ablest general, that is ब्रह्मजीत गौर was a Hindu. तो इनका जो एक जनरल था काफी अच्छा जनरल था, उनका नाम था ब्रह्मजीत गौर, वो हिंदू था.
Okay, Raja Todramal, who is well known as a luminary. Luminary means influencing the people. Okay, of Akbar's court started his career under the system. Means ये जो टोडरमल है, टोडरमल जो राजा होता है, ये बेसिकली स्टार्ट कहाँ से बिलोंग करता है? शेरशाह सूरी से, ठीक है। और बाद में ये अपना कैरियर कहाँ पे एस्टेब्लिश करता है? अकबर में, ठीक है। Shersha's personality presents as a rare combination of enterprises, more or less a human political conduct. तो इनके बारे में इनका जो पर्सनालिटी था काफी अच्छा था. Okay. Now, if we talk about the recap, if you're going to a snap recap, Shersha assumed the throne. Now, if you talk about going to revise what you have studied in short, Shersha assumed the throne in Delhi by defeating Humayun in the Battle of Kannauj. That means 1540 में ये किसको हराता है? हुमायूं को हरा देता है और ये टाइटल एज्यूम करता है डेट इज शेरशाह सूरी का, ठीक है, किंग का. शेरशाह इंट्रोड्यूस अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव military and the revenue system or revenue reforms. So Shersha is going to introduce administrative, military and revenue reforms. He improved transport and the communication services. As third point that he improved transportation and the communication system. Shersha defeats gave Humayun the opportunity to regain control over India. Shersha is going to give, means after the Shersha death, Humayun again come India to regain the control of power. Okay. Now, बच्चों, I think up to here we have completed this topic. Now, please go through the topic once again. Those who, if anybody has any doubt, please comment in the sections. Thank you दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है. थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन. बच्चों, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.